हाय गाइस, माय नेम इज करण एंड वेलकम टू रेडियो सीरीज वीडियो चैट, जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं एंड अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। और आज मेरे साथ वीडियो चैट पर रेडियो सिटी के डॉक्टर चिन्मय पटकी, फाउंडर डायरेक्टर ईशा विमेन हॉस्पिटल इन डोंबिवली, फर्टिलिटी एक्सपर्ट है, लैप्रोस्कोपी सर्जन है, यूएस से पढ़ाई की है। और जो मेन मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं, वो सबसे मेन चीज ये डील करते हैं, दैट इज मेल इनफर्टिलिटी। लेट्स टॉक अबाउट हिम इज द कैंपेन। और हम लोग बहुत टाइम से इसके बारे में रेडियो सिटी पर बात कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं आप? एंड थैंक यू सो मच एक्चुअली अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालने के लिए। Yeah. So first of all, thank you for the invite. Uh, Whenever there is opportunity to talk about fertility or specifically male fertility, it's always matter of great satisfaction if we can help out society in terms of understanding these complex jargons through a simple language. जी, So I guess English and Hindi हम दोनों को combine करेंगे ताकि हम larger एब्सोल्युटली audience तक पहुंच एब्सोल्युटली। जाए. एंड इसीलिए आप जो बता रहे हैं ना, मेन मुद्दा ही ये है, मेल इनफर्टिलिटी। शायद इंडिया में कहीं इतना बात नहीं होता, ओवरलुक हो जाता है। एंड बहुत बड़ा एक ईगो वाला मान लेते हैं कि अरे मर्द को कैसे हो सकता है। Correct, correct. जो टॉक अबाउट दिस इशू, सबसे पहले लोग इतने साइलेंट क्यों हैं? क्यों खुल के बात नहीं करते इसके बारे में? और ये कितने लोगों को होता है? व्हाट इज द परसेंटेज? सो इसके लिए मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूँ कि men they have the egos of size of a football field until you ask for a cement test. जैसे आप सीमेंट टेस्ट का बात करते हैं ना, जी सब लोगों के ईगोज बहुत छोटे हो जाते हैं फिर. जी Right now the stigma behind male infertility, I would say, in today's day and age is much lesser than what we have witnessed in the of a, I would say, at the beginning of 21st century. But still, if you ask me, even today, when your campaign so beautifully says let's talk about him, जी in India right now male infertility is still hidden behind a lot of social stigma and outdated beliefs. जी There is this strong cultural bias that whenever there is any fertility issue, it has to be associated with women. ये लड़की में ही फॉल्ट होगा, लड़के में, हमारे लड़के में कोई फॉल्ट हो ही नहीं सकता. ये जो हमारा सोच है, इसके वजह से बहुत बार ये होता है that we forget that in today's time when we are talking about infertility, जी right now if you look around, perhaps many couple who are in their 30s and 40s, they are struggling to have a baby. हम्म। And in that entire category, around 40 to 50% couples are actually having issues with their male counterpart, where husbands are suffering from a lot of sexual dysfunction, जी जिसकी वजह से उन्हें बेबी नहीं हो रहा है. बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो कपल घर में होता है, स्वाभाविक रूप से दे कैनॉट talk about it in open. हम्म A girl, when she is having some fertility issues, entire family discusses about it. But whenever there is a problem about male infertility, even that man is very anxious to talk about it. And we every year we come across many couples who are afraid to speak about it because they know that their own family will outcast them if they come to know that लड़के में कोई sperm का problem है या वैसे कुछ है. हम्म Now, हम्म the great thing what anybody and everybody who is listening to this conversation is, अभी हम बोलते हैं मेल infertility is easiest to treat. हम्म It's very easy to treat. What we require is good awareness campaigns like what you are running, wherein men can come forward and say that yes, we are trying for a baby and it's not happening. Yes, we are trying and we are facing some issues. If they can come forward and just talk about it, luckily all male fertility related problems are completely treatable. What जी if I tell you that many men, especially when the wiki donor picture जब आया, उसके बाद से सबको लगता है कि स्पर्म काउंट अगर जीरो है तो उसके लिए डोनर स्पर्म ही लगेगा. करेक्ट. व्हाट इफ आई टेल यू दैट वो सभी पुरुष जिनका स्पर्म काउंट जीरो है, जी उनमें आधे से ज्यादा लोगों को उनके खुद के स्पर्म से बेबी हो सकता है, हम्म प्रोवाइडेड वी डू समथिंग कॉल्ड एज अ माइक्रोटेसे. अभी ये जी जो सब साइंटिफिक एडवांसमेंट है ना, ये जैसे ही आएगा सबको पता चलेगा कि अरे ये फर्टिलिटी रिलेटेड इतना डरने का जरूरत नहीं। नहीं. जरूरत है एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की, और जरूरत है शुरुआत में दोनों के टेस्टिंग की. जब लड़की का टेस्टिंग होता है, उसके साथ साथ लड़के का भी टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है. नाउ
The best part is the fertility testing in men is very, very simple. Just one sperm test, and we come to know about everything. हम्म What we require is just one test. हम्म हम्म। तो सर, अपार्ट फ्रॉम जैसे आपने बताया विकी डोनर का मिसकंसेप्शन है या मिथ है, और भी कोई मिसकंसेप्शन मिथ है जो लोग सोचते हैं मेल फर्टिलिटी के बारे में? सबसे कॉमन मिथ मैं कहूंगा वो है कि लोगों को लगता है कि अरे मैं अगर सेक्सुअली एक्टिव हूं तो मेरे में इनफर्टिलिटी हो ही नहीं हो सकता। ही नहीं सकती सर। अगर मैं अच्छे से सेक्सुअल परफॉर्मेंस मेरा अच्छा है, मैं अच्छा मर्द हूं, तो मेरे में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हम्म वेल रियलिटी, आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस और आपका स्पर्म काउंट, इन दोनों का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। हम्म अ मैन हु इज वेरी गुड एंड केपेबल इन बेड हम्म can very well have zero sperm count. हम्म You हम्म, should know that. So, अच्छा। first and biggest myth is that. The second myth is many a times now we come across a lot of couples who actually have baby, जिनका एक पहला बच्चा है और दूसरी दफा जब वो बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बेबी नहीं हो रहा है। हम्म हम्म ऐसे केसेस को हम कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और इस कैटेगरी में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनका एक्चुअली पहला वाला स्पर्म काउंट अच्छा था, जी। लेकिन अभी स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, लेकिन उन्हें क्या लगता है, अरे आई हैव फादर्ड चाइल्ड बिफोर, सो मेरे में क्या अभी प्रॉब्लम क्यों हो है? सकता है, सही बात है। तो ये दूसरा है। और तीसरा और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स खाली लड़कियों के लिए होते हैं, नहीं। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स पुरुषों के लिए भी होते हैं, और इनफैक्ट उनके रिजल्ट ज्यादा प्रॉमिसिंग है। तो ये तीन सबसे कॉमन मिथ हम हमारे प्रैक्टिस में, डेली प्रैक्टिस में हम देखते हैं। जी। आप जैसे बता रहे थे कि दिस ओनली वन स्पर्म टेस्ट रिक्वायर्ड और पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ पता चल जाता है, बट कौन से पॉइंट पर, जब लड़की का टेस्ट कराते तभी कराना चाहिए या कौन से अब पॉइंट? हम बोलते हैं स्टार्ट में ही दोनों का टेस्ट होना चाहिए। हम्म देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पहले लड़की का टेस्टिंग और उसके बाद लड़के का टेस्टिंग, यही गलत है। ये दोनों का एक साथ? दरअसल ये दरअसल हम एक पुरुष के ईगो को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि अरे इनको कैसे बताएं। नहीं, जब टेस्टिंग है तो दोनों का एक साथ होना है। इनफैक्ट मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ मेरे ओपीडी में कि लड़के का टेस्टिंग पहला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक स्पर्म टेस्ट से पता चलता है। लड़की के टेस्ट में बहुत सारे ऐसे पायदान है जिसमें हमें अलग अलग लेवल पे टेस्ट करना है, जी लेकिन लड़की का टेस्टिंग बस एक स्पर्म टेस्ट कर लिया और हमें पता चल गया, तो इट हैज टू बी डन इन द बिगनिंग। जी। तो रिपोर्ट में क्या क्या पता चलता है? जैसे मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, व्हाट आर द थिंग्स सामने आती है जब लड़कों का टेस्ट होता है स्पर्म का? एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब स्पर्म टेस्ट की हम बात करते हैं ना, तो पहले तो आप बात समझिए कि स्पर्म टेस्ट में से बहुत सारी चीजें हैं जी जो केवल एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जान सकता है। जी। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग किसी पैथोलॉजी लैब में स्पर्म टेस्ट कराते हैं, हम्म और उन्हें बस एक चीज से मतलब रहता है, बॉटम लाइन क्या लिखा है, नॉर्मल या एबनॉर्मल। हम्म स्पर्म टेस्ट ऐसा नहीं होता। स्पर्म टेस्ट में काफी सारी चीजें होती है जिनको हमें स्टडी करना पड़ता है। जी स्पर्म काउंट के अलावा स्पर्म का मॉर्फोलॉजी कैसा है, पीएच कैसा है, विस्कोसिटी कैसा है, क्या उसमें डेब्री है या नहीं है, इन्फेक्शन है या नहीं है, ये सभी चीजें ना एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के आपका स्पर्म काउंट का रिपोर्ट पढ़ के बोल सकता है। जी। तो ये बहुत जरूरी है पेशेंट को समझना कि एक स्पर्म टेस्ट मतलब केवल काउंट नहीं है, उसके अलावा भी बेसिक और एडवांस ऐसे बहुत सारी टेस्टिंग है जो स्पर्म के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे पुरुषों में केवल बेसिक स्पर्म काउंट बस नहीं होता, उनमें हमें एडवांस स्पर्म टेस्टिंग भी करना पड़ता है। इसके लिए स्पर्म टेस्ट मतलब केवल काउंट नहीं है, उसके साथ साथ ये सभी पैरामीटर्स हैं जो प्रॉपरली टेस्ट होने चाहिए, और उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि स्पर्म काउंट पूरी तरीके से नॉर्मल है। मतलब किसी पुरुष में स्पर्म काउंट नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर उनके स्पर्म के मॉर्फोलॉजी में, मतलब स्पर्म का जो दिखने में स्पर्म अगर वो एबनॉर्मल है, या उसका स्पर्म डीएफआई ज्यादा है, या उसका हम्म विस्कोसिटी एबनॉर्मल है, तो ये पूरी तरीके से संभव है कि उनका स्पर्म काउंट नॉर्मल होने के बावजूद उनको बच्चा नहीं होगा। हम्म। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये स्पर्म टेस्ट का रिपोर्ट आप अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, जो इसको बराबर से एनालाइज करके आपको बताए। जी सर, आई वाज रीडिंग अबाउट स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्टिंग, ये क्या है एग्जैक्टली exactly, और कब एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स टू डू दिस? स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा टेस्ट है ना, जो पेशेंट छोड़िए, आज तक बहुत सारे हमारे डॉक्टर कम्युनिटी में भी इसका अवेयरनेस नहीं है। जी दरअसल क्या आपने सोचा है कि एक पुरुष जब अपना स्पर्म एक स्त्री को देता है रिप्रोडक्शन के लिए, वो लड़की का जो पूरा उसका जो डीएनए है वो कहाँ से ट्रांसफर होता है बेबी को?
तो वो स्पर्म से होता है, बराबर। हम्म। तो स्पर्म का जो एनाटॉमी है, भगवान ने जैसे बनाया है, स्पर्म को हेड होता है, हम्म। और इस हेड के अंदर पुरुष का पूरा डीएनए ऊपर वाले ने बराबर से उसके अंदर बिठा है। हम्म। अभी आप इमेजिन कीजिए एक बड़ा सूटकेस जिसमें आपने बहुत सारा सामान रखा है। हम्म। आप जितना सामान उसके अंदर रखोगे उतना वो कंप्रेस होते जाएगा, हम्म। करेक्ट। हम्म। हम्म। वैसे ही जब सृष्टि में आपका पूरा का पूरा डीएनए स्पर्म के अंदर बिठाया है, हम्म। तब स्वाभाविक रूप से इस स्पर्म को काफी सारे बेंड्स और ब्रेकेजेस होते हैं। हम्म। ओके। अभी ये जो स्पर्म के डीएनए में ब्रेकेजेस है, ये नॉर्मल है, नेचुरल अवस्था है। हम्म। लेकिन बढ़ते उम्र के साथ साथ, बढ़ते पोल्यूशन के साथ साथ, स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत सारे और भी फैक्टर्स है जिनकी वजह से हम्म। कुछ पुरुषों में इस स्पर्म के ब्रेकेजेस ज्यादा होते हैं। ओके। तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट हमें ये बताता है कि आपके केस में आपके स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन कितना है। मतलब हम्म। बहुत बार होता यह है कि पुरुष का केवल स्पर्म काउंट नॉर्मल होता है, लेकिन अगर स्पर्म डीएफआई ज्यादा है, मतलब उनके स्पर्म के डीएनए में ब्रेकेजेस ज्यादा है, तो ये पॉसिबल है कि स्पर्म काउंट नॉर्मल होने के बावजूद उनको नेचुरल बेबी नहीं होगा। हम्म। या फिर बहुत बार हम देखते हैं कि लड़कियों में अबॉर्शन जो होते हैं, उसका कारण भी यही स्पर्म डीएफआई होता है। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो नया रिसर्च है वो ये बताता है कि जब किसी को बेबी होता है और वो बेबी जब बड़ा हो रहा है, तो बेबी का आईक्यू पुरुष के स्पर्म के साथ रिलेटेड है। हम्म। मतलब अगर स्पर्म का क्वालिटी अच्छा है तो ही बेबी का आईक्यू अच्छा होगा। हम्म। उसके साथ साथ जब वो बेबी बड़ा होगा, अभी ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आजकल हम बहुत सारे केसेस में देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखते हैं, हम्म। साइकेट्रिक प्रॉब्लम दिखते हैं, जैसे कि पैरानॉइड, स्किजोफ्रेनिया, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। हम्म। इसका भी कारण उसके पप्पा का स्पर्म हो सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर स्पर्म डीएफआई ज्यादा है तो उसको ट्रीट करना चाहिए। हम्म। हम हमेशा पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपके केस में बार बार आईवीएफ साइकिल फेल हो रहा है, बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि केवल लड़की में ही प्रॉब्लम है। हम्म। पुरुष का काम केवल प्रेग्नेंट करवाना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका कारण भी पुरुष का स्पर्म हो सकता है, जिसका जांच केवल और केवल डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट से होता है। तो बहुत जरूरी है सभी को जानना कि स्पर्म डीएफआई क्वालिटी एनालिसिस है। स्पर्म का केवल काउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ स्पर्म का क्वालिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और जो कि केवल और केवल पता चल सकता है हमें इस स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट से। तो बिकॉज सर मैं भी किसी स्पर्म से पैदा हुआ हूँ और मेरे में भी उनका डीएनए है, तो क्या ये हेरिडिटरी से प्रॉब्लम हो सकता है या लाइफस्टाइल से मेरे में प्रॉब्लम होगा, मतलब जस्ट गिविंग एग्जांपल। या ये सो स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, पहले तो बात समझिए कि स्पर्म डीएफआई का नॉर्मल वैल्यू है मैक्सिमम अप टू 15 to 20% स्पर्म्स में अगर ज्यादा ब्रेकेजेस दिखे तो ये वैल्यू इंडेक्स नॉर्मल है 15 to 20%। लेकिन जब स्पर्म डीएफआई परसेंटेज 22% या 25% से ज्यादा आगे जाता है, तो ऐसे केसेस में नेचुरल प्रेगनेंसी होना असंभव होता है। अभी ये इतना ज्यादा किन पुरुषों में होता है, तो ये इसका कारण हेरिडिटरी नहीं होता, इसका कारण होता है बढ़ने वाली उम्र। अगर हम देखते हैं 35 से ज्यादा अगर एज है पुरुषों में, हम्म। स्पेसिफिकली अगर उनका 40 से ज्यादा अगर उम्र बढ़ते गया, तो उनमें डीएफआई रेट ज्यादा होता है। हम्म। उसके साथ साथ अगर उनके हैबिट्स है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, उसमें बहुत ज्यादा डीएफआई दिखता है। अगर ओबेसिटी ज्यादा है, ओवरवेट है, तो उनमें भी हम देखते हैं कि उनमें अगर उम्र उम्र उनका कम भी हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वेट है, वजन बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी है, तो उनमें भी डीएफआई बहुत ज्यादा होता है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चीज जो हम सब लोग मिस कर देते हैं, और वो है हमारे आसपास होने वाला प्रदूषण, पोल्यूशन। इस पोल्यूशन की वजह से भी पुरुषों में डीएफआई बढ़ रहा है, और हम्म। यही वजह है कि बहुत सारे पुरुष फर्टिलिटी में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम्म। तो अभी टेक्नोलॉजी है, एआई है, कितना एज डॉक्टर्स एंड आप लोग सब यूज करते हैं टू सबसे पहले डायग्नाइज और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए। तो ये स्पर्म टेस्टिंग अभी ना, पहले के जमाने में कैसा होता था, किसी का अगर हमने स्पर्म लिया जी। तो वो बस केवल एक स्लाइड पे डाल के प्रोसेस करके हम माइक्रोस्कोप के अंडर पेशेंट को स्पर्म काउंट बताते थे। जी। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मिस भी होती थी। जी। नया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि हमारे लाइफ के सभी सेक्टर्स में उसने काफी कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं, वैसे ही स्पर्म टेस्टिंग में भी एआई का भी काफी रोल बढ़ गया है। जी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ना केवल अभी स्पर्म काउंट बताता है, बल्कि उसके साथ साथ हमें स्पर्म मॉर्फोलॉजी, कुछ स्पर्म्स एबनॉर्मल है यानी जो कि एक एंड्रोलॉजी शायद मिस कर पाए, कंप्यूटर कभी मिस नहीं करता उन्हें। और इस वजह से दो फायदे हो रहे, एक तो बढ़ते आबादी और हमारे जो क्लिनिक्स में जो आने में जो बहुत ज्यादा टाइम लगता था, अभी हम देखते हैं कि वो बहुत कम टाइम में होता है। क्यों? क्योंकि एआई की वजह से फट से 10-15 मिनट में टेस्टिंग हो गया, 20 मिनट में हाथ में रिपोर्ट आता है। जी दूसरा, इस एआई की वजह से बहुत सारे ऐसे स्पर्म के जो माइनर प्रॉब्लम्स मिस हो सकते थे, वो अभी मिस नहीं होते। तो डेफिनेटली एआई की वजह से मेल फर्टिलिटी टेस्टिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। हम जब अभी आईवीएफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, तो एआई की वजह से हम अभी बेटर स्पर्म भी सिलेक्ट कर पाते हैं। तो इतना फायदा है एआई का। एआई डेफिनेटली एक अच्छा चीज है स्पर्म टेस्टिंग के लिए। और अभी जो सभी नए टूल्स आ रहे हैं, जो हम भी हमारे ओपीडी में, हॉस्पिटल में, हमारे क्लिनिक में यूज करते हैं, उसमें स्पर्म टेस्टिंग से लेके स्पर्म सिलेक्शन तक, अभी सभी पहलुओं में डेफिनेटली एआई का बहुत स्ट्रांग रोल है अभी। जी जी। एंड दैट इज द रीजन, ये हम लोग जो कैंपेन कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट हिम, टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या बोलना चाहेंगे सारे मर्दों को टू कम फॉरवर्ड? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आगे आइए, टेस्ट कराइए, हेजिटेशन कम होना चाहिए। व्हाट यू हैव टू से टू ऑल ऑफ देम? ऑल्सो उसके बाद सपोर्टिंग क्वेश्चन मेरा ये है ना कि जैसे कि आपने बताया कि मर्द का ईगो फुटबॉल ग्राउंड जितना है, लेकिन सीमेंट टेस्ट, स्पर्म टेस्ट की बात करें तो फिर जीरो माइनस हो जाता है। तो ये एज अ फैमिली कितना मेंटल हेल्थ उनका अफेक्ट कर सकता है? बिकॉज अभी एक्सेप्टेंस थोड़ा कम है। मे बी आगे वाले जनरेशन में देयर विल बी मोर एक्सेप्टेंस एंड मोर चैटर अबाउट इट। तो मेंटल हेल्थ ओवरऑल फैमिली का कितना इम्पैक्ट होता है, उस मर्द का कितना इम्पैक्ट होता है? सो उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले तो? मेरे को ये आपसे मैसेज और शाउट आउट और एनीथिंग व्हाट यू वांट टू से कि नंबर ऑफ केसेस यू हैव सीन इन योर लाइफ, कितने परसेंटेजेस में आपने देखा है विद द करंट लाइफस्टाइल ऑफ मेन, और कितने क्योर हुए हैं एंड दे हैव हैप्पी फैमिली एंड हैप्पी बेबीज नाउ? पहले सबसे पहले ये जानना है। यू नो, देखिए, इनफर्टिलिटी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। जी और जब तक हम इस चीज को खुले तौर पे बात नहीं करेंगे ना, तब तक पुरुष बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। पुरुषों को एक आदत है कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। जी किसी पुरुष को ये बता पाना कि मेरा स्पर्म काउंट कम है या मुझे इरेक्शन में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा अगर वो बोलते हैं तो लोग उन्हें बहुत ज्यादा जज करने लगते हैं। कोई उसे सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट हमारे देश में पुरुष तभी स्ट्रांग कहलाता है जब उसे ये कहा जाए कि उसका स्पर्म काउंट नॉर्मल है, हम्म या उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम्म स्ट्रेंथ आपके प्रॉब्लम छुपाने में नहीं है। स्ट्रेंथ आपके प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने में और उसको ऐसा डील करने में है। जी अगर आपको स्पर्म काउंट के बारे में प्रॉब्लम है, तो ये समझना चाहिए कि आपके वजह से आपकी पार्टनर साइलेंटली सफर कर रही है। क्योंकि वो तो आज किसी को बोल नहीं पा रही है कि मेरे हस्बैंड के स्पर्म काउंट कम है, इसके वजह से मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। तो वो बहुत सारे समाज के, फैमिली के ताने साइलेंटली झेल रही है। क्यों? जी क्योंकि आप हिम्मत नहीं दिखा रहे हो कि आप में जो प्रॉब्लम है उसको बात करने की। जी तो बहुत जरूरी है सभी को जानना कि अगर आपके केस में फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको सर्दी खांसी जुकाम के लिए कैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, उतना ही क्लीनली और बोल्डली आप डॉक्टर्स को अप्रोच करें। क्योंकि ये आपका एक पर्सनल मैटर है, लेकिन उसके साथ साथ एक फैमिली एक इन्वॉल्व है। जी इनफर्टिलिटी हैज एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय फैमिलीज। किसी घर में ना बच्चे नहीं होते तो हमने देखा है कि डिवोर्स तक मामले जाते हैं। हम्म बराबर है ना? हम्म तो ये एक इमोशनल इशू है। इससे डिप्रेशन, एंजाइटी पुरुषों में बहुत बढ़ रहा है। हम्म और वो उनको प्रोफेशनली भी अफेक्ट करता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी को समझना कि अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप आपका टेस्टिंग कराइए। और टेस्टिंग करने के बाद डरने की जरूरत नहीं है। इस सभी चीजों के लिए ट्रीटमेंट है। आपका स्पर्म काउंट जीरो है तो भी आपको आपके स्पर्म से बेबी हो सकता है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? बराबर है ना? तो टेस्टिंग को लेके मत डरिए। टेस्टिंग एक इतना सिंपल चीज है जिसमें आपको क्लिनिक इन एंड आउट लिटरली 15-20 मिनट में आना है और जाना है। हम्म लेकिन आपके इस एक कदम की वजह से आप आपका फैमिली पूरा बचा सकते हो। आपके वाइफ को जो अननेसेसरी सबके ताने सुनने पड़ते हैं, उससे आप खुद को और आपके वाइफ को बचा सकते हो। और मोर इम्पोर्टेंटली, जो आप बेबी चाहते हो ना, वो तभी संभव होगा जब आप आपका प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाओगे। तो इस स्पर्म काउंट को लेके
वो जो बहुत सारी गलत सोच है मर्दांगी को लेके हमारे जो देश में सोच है, उससे मुझे लगता है हमें थोड़ा उभरना चाहिए. A real men are those who can talk about their problems and get help in time rather than making your partner suffer silently just because you do not have the ability to accept your problem. So it's very, very important. Absolutely. And doctors like you would also, I'm sure, work as a psychologist for them because mental health भी इतना affect हो जाता है. So what do you guys advise to them at that point of time? How to stay strong? Yeah. So we tell them that your sperms don't define you. Hmm. A sperm has a life cycle of only 61 days. Hmm. You, your ability to make sperm doesn't define you as a person. Hmm. Okay, if you have a sperm count of 100 million doesn't make you a winner, and if you have a sperm count of less than 10 million doesn't make you a loser. Hmm. It is, हम लोग ये खुद ने हमने तय कर लिया है कि हमारा जो भी अस्तित्व है वो हमारे फर्टिलिटी, हमारे सेक्सुअल स्ट्रेंथ और हमारे स्पर्म के अराउंड है. ये बहुत ही मायोपिक व्यू है लाइफ के बारे में सोचने का. जी. पहले के जमाने में आप एक बात सोचिए, अगर किसी को नजर में कम दिख रहा होगा तो अगर कोई पहला आदमी जो स्पेक्ट पहना होगा उसने, उसको तो आजू बाजू के सभी लोगों ने बोला होगा अरे यार इसकी नजर खराब है करके. Hmm. आज आधे से ज्यादा दुनिया चश्मा पहन के घूम रही है. True. ये कब हुआ? क्योंकि किसी एक ने हिम्मत दिखाई कि मुझे नहीं दिख रहा है, आई कैन नॉट रीड प्रॉपरली. उसी तरह पुरुषों में भी आप ये जो रेडियो सिटी है आप कैंपेन चला रहे हो लेट्स टॉक अबाउट हिम, इससे ही लोगों को हिम्मत मिलेगी. वो लोग सामने आएंगे और बोलेंगे जी हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मैं बेबी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मेरे वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे में ही है. अगर ये वो खुद के फैमिली में बोलेंगे ना, तो आप विश्वास नहीं करोगे वो फैमिली मेंबर्स पहले काम करेंगे कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे. True. क्योंकि फैमिली भी किसी हद तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अरे पुरुष में प्रॉब्लम है. तो ये बहुत जरूरी है सबको समझना कि रादर देन सफरिंग साइलेंटली आप सामने आइए और बात कीजिए. और आपके जैसे जो कैंपेन्स है लेट्स टॉक अबाउट हिम, इट इज गोइंग टू डू अमेजिंग वंडर्स इन जनरल. क्योंकि ये जो सभी आपके श्रोतागण है जो सुन रहे हैं उनको शायद थोड़ी हिम्मत मिलेगी और वो डॉक्टर्स को अप्रोच करेंगे ये बताने के लिए कि जी हाँ पहले मिरर टेस्टिंग करिए और उसके बाद ही मेरे वाइफ का टेस्टिंग करिए. Wonderful, sir. Thank you so much for speaking this and being part of this campaign. Let's talk about him. He is Dr. Chinmay और जैसे इन्होंने बताया कोई शर्म नहीं है. असली मर्द वही होता है जो एक्सेप्ट करे सबसे पहले चीजें और जाके टेस्ट कराए. अपनी अपनी जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में बनाइए. एंड आई एम श्योर लाइफ विल बी ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर चिन्मय फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. बहुत थैंक सारी यू. बातें अबाउट लेट्स टॉक अबाउट हिम हम लोग कर रहे हैं रेडियो सिटी पर. If you have any feedback, any suggestion, do let us know in the comment section. थैंक यू. The next थैंक time, यू I'll सो see मच. you again. Bye थैंक bye. यू. थैंक यू.